great, yeah. Good Luck season 4 is will be out on the 7th of June, and so looking forward to it. And I'm truly looking forward to it, and I'm very happy and excited. See, APJ is a special person, and he has been there. He's been around for a long time, so it's very fresh in the hearts and minds of the people, and he's inspired a lot many people. I'm so happy that people are loving it. मैंने कहा मैं टीवी नहीं करता, तुम दोनों कन्विंस करिए, टीवी नहीं है ये, ओटीटी है ये, मतलब ये डेली सोप नहीं है, 5 एपिसोड हैं। और मैंने कहा फिर भी है तो टीवी पे है ना, टीवी जैसा ही है ना। आई डिडंट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एट दैट टाइम। नरेशन सुना मैंने तो मुझे ज्यादा मजा आया। फ्रेंड्स अब्रॉड आल्सो टोल्ड मी दैट दिस इज द न्यू बिग थिंग एंड यू शुड डू इट। तो मैंने बड़े आधे मन से मैंने हाँ किया, और थैंक गॉड मैंने हाँ किया इसके लिए। जो मोहब्बत मुझे इस संतोष मिश्रा से और गुल्लक से जो मिल रही है, वो इतनी मोहब्बत कभी कभी नहीं मिली। हम खुली विचारधारा के प्राणी हैं। ध्यान रखो, विचारधारा की तरह इज्जत न खुल जाए। Ladies and gentlemen, boys and girls, कुर्सी की पेटियों को टाइट से बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि सबके चहेते मिश्रा परिवार आपको एंटरटेन करने के लिए गुल्लक के नए सीजन के साथ फिर से हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, एक बार फिर सबके सामने आ चुके हैं मिश्रा परिवार। इस मिश्रा परिवार के सबसे अहम किरदार हैं संतोष मिश्रा जी। वो आज फिल्मी बीट के मंच पर आए हैं। There is no prize for guessing that we are talking about the one and only Jamil Khan sir. Hello sir, कैसे हैं आप? Hi, good to be with you. I'm so looking forward to this. First of all, tell me, how are you doing, sir? I'm doing great, yeah. Good Luck season 4 is will be out on the 7th of June, and so looking forward to it. And Good Luck is special, has always been, and so yeah, I'm truly looking forward to it, and I'm very happy and excited. I've had in Mission Raniganj did very well. Then, as you mentioned, Shrikant did very well, and now Good Luck's coming out, so it's like a triple whammy. So I have to say, before we talk about Gullak, I have to tell my audience, this man is killing it. If you have watched Shrikant, Rajkumar Rao starrer, and I guess बहुत लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन अगर उन्हें ये नहीं पता जो हमारे प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम का किरदार जो निभाया है जमील खान साहब ने। Sir, I was completely speechless when I watched you on screen. Like, and it was not about me. I have seen people in the theater, like, they were in awe, sir, when they watched, and I saw people crying. Because APJ Abdul Kalam, sir, he holds a special place in our heart. And for you to portray that role with so much calm, so much, it was like effortless, with perfection. Congratulations for that, sir. Thank you. See, APJ is a special person, and he has been there. He's been around for a long time, so it's very fresh in the hearts and minds of the people, and he's inspired a lot many people, like Shrikant also. And he's such a generous, magnanimous, and a wonderful human being, which I think is worth emulating for any and every individual across the world. Where he was, where he's come from, and where he's reached. It's a tremendous journey to appreciate and to try and live up to as individuals, and therefore it does inspire me as not does he only inspire me, but for me it was a big challenge. I wasn't very on with it, and I didn't even think that I could do a person like APJ Abdul Kalam. It was Tushar, the director, his conviction, and I went along with it, and I'm so happy that people are loving it, and I'm so blessed, and I'm happy and thankful to God that people have loved the film. It's a great film. Raj has done a tremendous job. All the performances have been wonderful, and APJ Abdul Kalam, it's a small part, but it has resonated wonderfully with people, and I hope somebody thinks about making a full feature with me in it. I would love to do it. Yeah. That's amazing, sir. And thank you from the bottom of our heart, because you decided to do it. You brought the magic on. So talking about magic, Good Luck season 4 is about to knock our doors, ladies and gentlemen, as we mentioned. The man, Mr. Santosh Mishra is here with us. So sir, tell us, what's new in this season? क्या तड़का होने वाला है? Trailer तो बहुत
धमाकेदार है, लेकिन सीजन में क्या तड़का होने वाली ये आप हमें बताइए। देखिए, जो गुल्लक का फॉर्मेट है वही 5 एपिसोड, वही 3 साढ़े 3 घंटे में। और जो मजा मस्ती, जो चुटकुलेबाजी है, जो खिंचाई है, जो मोहब्बत है, जो बॉन्ड है, दैट इज इंटैक्ट। नए किस्से हैं, और नए वाक़े हैं इसमें, जो कि आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, नॉस्टैल्जिया देंगे आपको। और आप वो जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर गुल्लक की है कि भाई, अरे हाँ यार, ये तो मेरे घर में भी तो ऐसे ही होता है। अरे यार, मेरे पापा ऐसे ही करते हैं। और मेरा छोटा भाई है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मम्मी तो बिल्कुल बिल्कुल ही वैसे ही वही कर रही हैं। तो वो जो है ना, वो इंटैक्ट रहेगा आपको। और मिडिल क्लास के अंदर इतना सारा मसाला है, इतने सारे मोमेंट्स हैं, इतने सारे किस्से हैं कि सीजन दर सीजन हम बनाते जाएं। और अगर आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोहब्बत बनी रही, तो ये 4 क्या 40 सीजन तक बनाते जाएंगे हम लोग। और वही वो नयापन इसमें ये है कि देखिए, ये विंटर का है। पहले अभी तक हम उसको गर्मियों में दिखाते थे, अब ये जाड़ों का एक फील है। तो एक 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 मुलायमियत है इसमें, और इसमें एक वार्मथ है जो आपको दिखेगी जाड़ों में। जैसे आप रजाई ओढ़ के, क्विल्ट ओढ़ के अंदर होता है ना एक वार्मथ, कोजीनेस, वो कोजीनेस दिखेगी आपको उन सीन्स में। वो तमाम चीजें हैं। इसके डायरेक्टर इस बार नए हैं, श्रेयांश पांडे हैं। राइटर अलग हैं, विदित। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अलग होने के बावजूद भी उसका जो फ्लेवर है, उसका जो मजा है, वो वैसा ही है जैसे प्रीवियस सीजन में था। और नए नए किस्से हैं, तो नए किस्म के मजे हैं उसमें। तो वो देख के आपको मजा आएगा डेफिनेटली। और मुझे पूरी बिल्कुल उम्मीद है कि हम आपको हंसाएंगे और रुलाएंगे भी, और गुस्सा भी दिलाएंगे, और उस तमाम इमोशंस को हम खंगालेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि हंसाएंगे भी रुलाएंगे भी, हर तड़का होने वाला है। जैसे किचन में ढेर सारे मसाले मिलते हैं ना, तो गुल्लक में भी मसाला मिलने वाला है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि स्पेशली द काइंड ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग इन इंडिया एट द मोमेंट, लड़ाई झगड़ा मारपीट, बहुत तरीके का कंटेंट है स्पेशली ऑन ओटीटी। पर जो फैमिली को जोड़ने वाला शो है वो है गुल्लक। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। दिल्ली मेट्रो में, लाइक मैं आई एम अ दिल्ली बेस्ड, तो दिल्ली मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा था, और मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ और बूढ़े लोगों को भी देखता हूँ 60s 70s में, वो भी आराम से बैठ के जब गुल्लक देखते हैं ना, तो ये पता चलता है कि छोटा हो बड़ा हो हर कोई गुल्लक देख रहा है। मानेंगे कि नहीं आप भी ये बात? और ये बहुत ही कमाल की बात है कि छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक इस शो को उतनी ही शिद्दत से, उतनी मोहब्बत से देखता है, और उतना ही प्यार देता है। और गुल्लक की यही एक खासियत है कि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता, बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं करता। जो बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में, बहुत ही सरल अंदाज में, और बड़े ही एंटरटेनिंग अंदाज में वो सारी बातें कह जाता है, जो आपको हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं, रुलाती हैं, कुछ याद दिलाती हैं, कुछ रिश्तों को मजबूत करती हैं। और आपको कहीं एक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक सीख भी दे जाती है कि यार देखो, ये भी तो एक जिंदगी, ऐसे भी तो जिया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि यार हर बात पे लड़ लो, हर बात पे मतलब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। और मोहब्बत एक चीज ऐसी है ना, जिससे बड़ा कोई जज्बा है ही नहीं। नफरत की जगह दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल नफरत को बिल्कुल। निकालो, मोहब्बत ही वो जज्बा है जो बिल्कुल जोड़े क्या बात रखेगा। बोली सर आपने। तो आज से आपको 4 5 साल पीछे लेके चलता हूँ, जब आपको ऑफर किया गया था गुल्लक। सर आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने अपना, डिड यू टेक योर ओन स्वीट टाइम, और यू इंस्टेंटली लाइक नहीं मुझे तो करना है? बिकॉज ये बताना भी जरूरी है कि आज से 5 साल पहले ओटीटी वाज ब्लॉसमिंग, बट जिस तरीके से आज इट हैज ब्लॉसम लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले ऐसा नहीं था। लाइक बिग बॉलीवुड स्टार्स इवन यूज्ड टू लाइक ओटीटी पे आएंगे, टीवी पे आएंगे, नहीं, इट वाज ऑलवेज अबाउट सिनेमा। बट यू टेकिंग अप सच अ ब्यूटीफुल रोल, संतोष मिश्रा लाइक जगत के पापा बन चुके हैं वो, मतलब है ये है। तो आपका क्या रिएक्शन था सर उसके बारे में? आप कोई कहानी है जो आप हमें बताना चाहेंगे फिल्मी बीट के मंच पे, कि कितना आपने टाइम लिया, कि आपने इंस्टेंटली बोला नहीं मुझे करना है? नहीं, मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा मैं टीवी नहीं करता। तुम दोनों कन्विंस कन्विंस हम्म, करिए, टीवी नहीं है ये, ओटीटी है। हम्म, ये मतलब ये डेली सोप नहीं है, 5 एपिसोड हैं।
और मैंने कहा फिर भी है तो टीवी पे है ना, टीवी जैसा ही है ना। आई डेंट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एट दैट टाइम, तो मैंने मना कर दिया था। तो फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, कई सारे मैसेजेस आए, स्क्रिप्ट भेजा, सर पढ़ लीजिए। पढ़ लिया मैंने बड़े अदब से, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ अच्छा है ठीक है, लेकिन मुझे करना नहीं है। नहीं सर आप कर लीजिए। मैंने कहा क्यों कर लो यार, मैं तो फिल्मों वाला आदमी हूँ, मैं टीवी शीवी नहीं करता हूँ। सर ये टीवी नहीं है, ये ओटीटी है। तो मैंने कहा ठीक है तो सर एक नरेशन सुन लीजिए। नरेशन सुना मैंने, तो मुझे ज्यादा मजा आया। तो फिर थोड़ा मेरा मन आया, फिर मैं थोड़ा सा वक्त था बीच में, तो मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं। मैं राजी हो गया, फिर पैसों का मामला अटका। फिर मैंने कहा, लोगों ने कहा नहीं नहीं टीवीएफ का कंटेंट अच्छा होता है, तो यू शुड ट्राई। इट्स ए न्यू एवेन्यू एंड इट्स एंड इनफैक्ट फ्रेंड्स अब्रॉड आल्सो टोल्ड मी दैट दिस इज द न्यू बिग थिंग एंड यू शुड डू इट। तो मैंने बड़े आधे मन से मैंने हाँ किया, और थैंक गॉड मैंने हाँ किया इसके लिए। थैंक और यू। खास तौर पे हाँ बिल्कुल, बिकॉज द लव, जो मोहब्बत मुझे इस संतोष मिश्रा से और गुल्लक से जो मिल रही है, वो इतनी मोहब्बत कभी कभी नहीं मिली, और इतने लंबे अरसे तक। मतलब अब 2019 में पहला सीजन आया था, और अब तक मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है लोगों की, और लोगों का लगाव, और लोगों की जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब मैंने तो लोगों को इस हद तक देखा है कि मैसेजेस डालते हुए कि सर, मतलब बाकायदा ऑडियो मैसेजेस रोते हुए कि सर काश कि मेरे पापा ऐसे होते, थिंग्स लाइक दैट। या आप मेरे पापा से थोड़ी बात कर लीजिए ना सर, उनको समझा दीजिए ना, आप अच्छा समझाते हैं। तो इट इज सो हार्ट वार्मिंग टू गेट दोज जेन्युइन इमोशंस फ्रॉम द ऑडियंस। तो बहुत 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 प्यार मिल रहा है। आई कांट Very थैंक गॉड इनफ। and we are so grateful and kudos to the entire team of TVF and Sony Live because they have brought together such a beautiful story which is not only relatable, it touches the strings of your heart. That's the best part. Like आपका मूड खराब है आप तब भी देख सकते हो, मूड अच्छा है तब भी देख सकते हो, रोने का मन कर रहा है आंसू नहीं आ रहे तब भी देख सकते हो, फैमिली को मिस कर रहे हो, आप बैंगलोर में हो, फैमिली दिल्ली में, लखनऊ में, कहीं पर, तब देख सकते हो. That's the beauty of Gullab, isn't it? एब्सोल्युटली। अब वो देती है भाई आपको, और रिपीट व्यूअरशिप है भाई। लोगों ने पच्चीस Exactly. पच्चीस रखे हैं उनको। और अच्छी बात ये भी है कि शॉर्ट एंड स्वीट भी है कि 3 घंटे में आप एक सीजन देख लेते हो। मैं बता रहा हूँ ना, देयर आर ऑडियंसेस हु हैव वॉच्ड इट 20 25 टाइम्स, व्हिच इज फिनोमिनल। एक्चुअली नहीं कंप्लीटली. तो लोग कहते हैं कि जो 20s में होते हैं 30s में होते हैं उनकी केमिस्ट्री होती है, नहीं, गुल्लक ने प्रूव कर दिया. मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा की जो केमिस्ट्री है, जमील सर की और गीतांजलि मैम की जो केमिस्ट्री है, जो आपकी नोक जोक है ना ऑन स्क्रीन, मतलब मजा आ जाता है, लगता है कि अच्छा मम्मी पापा ऐसे ही लड़ते हैं. और जब कोई सोल्यूशन भी निकालना हो मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा साथ में आ जाते हैं. तो इस केमिस्ट्री का क्या राज है सर, मतलब ये चुम्बेश्वरी केमिस्ट्री है, मतलब देख के लगता है अच्छा मम्मी पापा यही करते हैं, अच्छा घर में कोई प्रॉब्लम है साथ में मिलके मम्मी पापा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप आपकी केमिस्ट्री के बारे में? ये मैंने अपने माँ बाप में देखा है। मैं इनफैक्ट हम लोग बोलते थे कि हमारी अम्मी, जब वालिद हमारे रिटायरमेंट ले लिया था, घर में रहते थे, भाई लोगों ने बिजनेस संभाल लिया था, तो उनका जो शौक रह गया था वो खाना पीना ही रह गया था। तो ही यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि भाई आज क्या पक रहा है, आज क्या पका है। तो वो क्या करते थे कि अब उनके पसंद की कोई चीज बन रही है, तो हर 5 मिनट में उठ के किचन में जाते थे। हाँ भाई हो गया। हम्म. फिर 5 मिनट भाई, अरे भाई कितना टाइम लग रहा है, तो अम्मी भी डांट देती थी, आप खामोशी से बैठिए, वहां पर तैयार हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास। तो उनको डांट भी पड़ जाती थी उससे। और फिर कोई ऐसी बात होती थी तो हम लोग देख के उनको बोल क्या करते, पास में बैठ के दोनों, मतलब ऑलमोस्ट दैट क्लोज दोनों, और फुसफुस फुसफुस कुछ विस्पर्स में बात करे, तो हम लोग देख के बड़ा हंसते थे। देखो देखा, तोता मैना अभी लड़ रहे थे, और अभी देखो कितनी मोहब्बत से बातें कर रहे हैं चोंच से चोंच लगा के। तो मतलब इस तरीके की मस्ती, तो वो चीज, वो है, वो एक रिश्ते की गर्माहट, जो एक रिश्ते की पुख्तगी है ना, मियाँ बीवी की। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि इससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं होता, और इससे नाजुक कोई रिश्ता नहीं होता। तो इसको बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। और यही एक वो रिश्ता है जहां पर कि माँ बाप के अलावा, कि जहां पर कि सेल्फलेस होता है काफी लव. हद तक। कंप्लीटली तो एग्री विद यू. तो ये संतोष मिश्रा और गीतांजलि की जो बात है, गीतांजलि इज सच अ फाइन एक्ट्रेस, सो देयर इज अ ह्यूज गिव एंड टेक दैट हैपेंस। एंड वो
and there is mutual love and respect for each other also, Gitanjali and myself. And we've done some theater, which I'd forgotten about, which Gitanjali reminded, that we've done some theater, some plays in our early life. तो मुझे लगता है कहीं एक कार्मिक कनेक्शन है वो गीतांजलि का और मेरा, कि भाई हम लोग साथ आए एंड देन वी जस्ट हिट इट ऑफ वंडरफुली, नॉट ओनली विद गीतांजलि एज, मतलब एज अ वाइफ, एज माय को एक्टर, वो बहुत कमाल का हम लोग की बॉन्डिंग है, और अपने दोनों बेटों के साथ भी वही एक रिश्ता है, तो मजा आता है। हमें मजा आता है सर देखने में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम थके हारे होते हैं ना, हमें वो स्टोरी देखने का मन करता है जो रिलेटेबल हो और हमारे चेहरे पे स्माइल आता है। शायद तभी गुल्लक इतना सक्सेसफुल है। सक्सेस की बात करें, सीजन 4 आने वाला है अगले महीने। चल एक प्रेशर है बिकॉज सीजन 1 आ गया, 2 ने और पैरामीटर हाई कर दिया, 3 ने उसको सरपास कर दिया, सीजन 4 में एक प्रेशर है। एज एन एक्टर डू यू फील द प्रेशर कि उसका जो बार है, यू हैव टू मेंटेन दैट बार? वो प्रेशर तो है कि भाई ये बार मेंटेन होना चाहिए। मैंने ये मेकर्स को भी हमेशा ये बोला है, मैंने कहा भाई देखो, ऑडियंस के दिलो दिमाग में कैरेक्टर्स बैठ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं। आइदर एज एक्टर्स हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जगह बना ली है उनके दिलो दिमाग में। खुदा न खास्ता अगर वो चीज गिरती है तो फौरन मेकर्स पर वो उंगली उठेगी कि यार ये आपने उतनी मेहनत नहीं की उस पे। और लकीली ये है कि सीजन 4 में भी वैसा ही आपको दिखेगा जो पहले दिखा है, कि स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि मुझे स्ट्रेस नहीं है उतना कि क्या होगा फोर्थ सीजन का। लेकिन वो क्या होता है, कोई भी नई चीज आने लगती है तो आपको मालूम है कि आप एक मतलब अंधेरी खाई में जाने वाले हैं, वहां कहाँ पहुंचेगा वो हमें नहीं मालूम होता। लेकिन उम्मीद जरूर है कि लोगों को पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी यही उम्मीद है सर कि मतलब भरपूर प्यार। सिर्फ 4 सीजन नहीं, सीजन 5 आए, 6 आए, 7 8 मंथ तक ये जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पे चलते रहे, मतलब रुके ना कभी। ये सिलसिला जो है ये चलता रहे। सिलसिले से मुझे आपसे वो करना है, यू हैड अ लॉन्ग लास्टिंग करियर, एक करियर है। एज एन एक्टर यू सी द हाईएस्ट ऑफ हाइट्स सर एंड द लोएस्ट ऑफ लोस। एंड मुंबई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, is a city of dreams, but it is also a city which keeps on hustling. So as an actor also you have to keep maintain the hustle. Was there ever a phase in your career कि आपको लगा हो कि अब नहीं हो रहा है? बिकॉज शोबिज का इतना आसान नहीं है। हम तो सिर्फ एक एंड प्रोडक्ट देखते हैं सर, टीवी पर, सिनेमा पर। आप वो जीते हो, सेट पे जाते हो, शूट करते हो, बहुत बार शूट होता है, ऑडिशन देते हो, वो पार्ट कट हो जाता है। तो इस जर्नी के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे। संतोष मिश्रा के बारे में हमने बात कर लिया, अब जर्नी खान एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट के बारे में जब अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहोगे, कोई ऐसा फेस आया जब आपको लगा अब नहीं हो रहा है, लेकिन अपने आप को रोक लेने, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है? नहीं, मुझे डे वन से मुझे काम करने का शौक था, और मैं आया था थिएटर करने के लिए। यहाँ फिल्मों की तरफ मेरा रुझान या टिल्ट बिल्कुल नहीं था। वो हो गया क्योंकि थिएटर से अनफॉर्चुनेटली आपका घर नहीं चलता। हम्म। तो थिएटर मैंने किया, बहुत साल तक थिएटर किया मैंने, और फिर उसके बाद, और लकीली फॉर मी, आई वाज एसोसिएटेड विद नसीरुद्दीन शाह मॉटली थिएटर। तो उनकी वजह से एक आपको ऑटोमेटिक व्यूअरशिप मिल जाती है कि भाई नसीर भाई का प्ले देखने आते हैं लोग। कोई ऐसा नया बंदा हो तो उसके लिए उतने लोग नहीं जाते देखने के लिए, तो वो एक एडेड एडवांटेज था मेरे लिए कि भाई नसीरुद्दीन शाह का प्ले है भाई, चलो देखने चलते हैं। तो उसको देखने के लिए लोग आए, और वहां पर आए तो देखा, अरे यार ये कौन एक्टर है। तो आपको वहां से एक पहचान मिली, एक आपको लोग पसंद करने लगे, तो वहां से चीजें शुरू हुई। और क्योंकि जब आप थिएटर किए हुए होते हो ना, तो आपकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल, इतने चैलेंजेस रहते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने कॉम्प्लिकेट या शोबाजी या कुछ ऐसा लवाजमात बढ़ाए नहीं कभी। बहुत सिंपल लिविंग है मेरी। एक ऐसी दीवार है और उस पर एक टंगी हुई पेंटिंग है। मैं, ये दिख रहा है मुझे इत्तेफाक से, इसलिए बता रही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट की जरूरत नहीं है। आदमी को जिंदगी में उतना ही रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जितने की जरूरत है। बाकी
हाँ ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डोंट स्ट्रेस। सर तो आप वैसी अगर क्योंकि हीरा जिंदगी। है, हीरा को किसी और चीज की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, मतलब इसी तरह हमको एंटरटेन करते रहिए। एक आखिरी सवाल है। अब आप बन जाएंगे बिजनेसमैन और मैं हूं आपका कस्टमर। मैं समझ लीजिए पहली बार गुल्लक देखने वाला हूं। आपको 5 रीजन देने हैं कि मैं गुल्लक क्यों देखूं। जब मैं बोलता हूँ पूरी ऑडियंस के लिए है कि पूरी ऑडियंस आपकी कस्टमर है, आप बिजनेसमैन है, संतोष मिश्रा जी को कैसे आप सामने वाले को बेचेंगे? वो आपका प्रोडक्ट है गुल्लक, संतोष मिश्रा आपका प्रोडक्ट है, और आपको 5 रीजन मुझे देखना है क्यों संतोष मिश्रा को और गुल्लक को 7 जून से मैं सोनी ले पर देखूं। गुल्लक आपको देखना चाहिए, क्योंकि गुल्लक आपके हार्ट स्ट्रिंग्स को कहीं ना कहीं आपको वो छेड़ेगा, आपके दिलो जज्बात को छेड़ेगा। आपको वो एहसास दिलाएगा जो परिवार में देखा जाता है, मिलता है। और आपको वो मस्ती मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जिस किस्म की मस्ती है आ, वो मिलेगी आपको। और मियाँ बीवी का रिश्ते के रिश्ते की एक गर्माहट मिलेगी, भाई भाई के रिश्ते में एक गर्माहट मिलेगी, बाप बेटे के रिश्ते में एक एक जो कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी प्यार, कभी तकरार, वो चीज दिखेगी आपको। और मिडिल क्लास के जो बड़े वैल्यूज। मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ साथ मिडिल क्लास के जो किस्से होते हैं ना, जो उनकी जिंदगी में जो होता है, अ, उसकी परछाइयां आपको बहुत सारी दिखेंगी। और परफॉर्मेंसेस कमाल के दिखेंगे आपको। जाड़ों का जो एक फील है, जो एक नया है इस बार, वो एक अलग चीज दिखेगी आपको। और गुल्लक को मुझे ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने गुल्लक को इतना प्यार दिया है कि बिल्कुल गुल्लक मुझे लगता है कि लोग इंतजार करते हैं बड़ी शिद्दत के साथ कि गुल्लक का अगला सीजन कब आए और कब हम देखें। और मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ आपको कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ये जो सफर था हमारा जमील सर के साथ वो खत्म होता, लेकिन गुल्लक खत्म नहीं होने वाला है। जून का महीना बहुत गर्मी होती है, लेकिन गुल्लक ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आपको बर्फ के ऐसे मौसम में लेके जाने वाला है जिसको आपसे ना ये एंटरटेन होंगे, बट आपका जो चटकारा होगा, मुंह का जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि गर्मी के महीने में ठंड का जो एहसास है वो गुल्लक आपको खिलाने आ रहा है। और एक और बात बोलना चाहूंगा, सोनी लिव का जो ताज है उसके ताज में वो प्यारा सा मोती है, वो ज्वेल है गुल्लक। स्कैम के साथ, महारानी के साथ गुल्लक भी एक अलग जगह बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच जमील खान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सुबह से इंटरव्यू में बिजी है लेकिन उनकी स्माइल मेंटेन है, देखिए वो प्यारी सी स्माइल अभी भी मेंटेन है, और मैं फिल्मी वीक के दर्शकों के लिए चाहता हूँ फिर से सर एक स्माइल दे दे मेरे लिए। बिल्कुल, गुल्लक जो है वो सोनी लिव के लिए और टीवीएफ के लिए कोहिनूर का हीरा है उनके ताज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत और उस शुक्रिया, मुझे कोहिनूर प्लेजर। के हीरे में सर आप भी एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। लेडीज एंड जेंटलमैन, 7 जून को गुल्लक देखना ना भूलिएगा। और जैसे ही आप देखते हैं आपको पता है किसके डीएम को फ्लड करना है, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, ढेर सारा प्यार लुटाइए और उनको देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक श्रीकांत नहीं देखा है, जमील सर के लिए देख लीजिए, आप यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank Thank you, you sir. so much. Bye bye. Thank you so much, sir. Thank you so much.